I audible you clearly? Are you able to see the screen? Screen पर दिसते का व्यवस्थित? Yes, in the morning lecture we have seen this portion: misbranded drug, spurious drug, adulterated drug. These three definitions are very important. If you see the paper, they are consistently asking these three questions. Okay, so you have to be clear about these definitions. We have seen this. Okay, misbranded drug, adulterated drug, then misbranded drug, then spurious drug, and all that magic remedies. So remaining definition, if I think जो कुछ भी important portion मुझे लगता है कि इसके इस portion में cover नहीं है और कुछ definitions बाकी है तो वो मैं next lecture में लूँगा. अभी ये भी देखा आपने ड्यूटेबल गुड्स डीनेचुरेट प्रूफ स्पिरिट कितना होता है वो भी आपको याद रखना है. 100% प्रूफ स्पिरिट में 57.1% वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल. इथेनॉल का अगर 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है उसको बोलेंगे 100% प्रूफ स्पिरिट. ड्यूटेबल गुड्स मतलब क्या है? ड्यूटेबल गुड्स मतलब जैसे मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन होता है उसमें क्या होता है? अल्कोहल का यूज होता है, अल्कोहल का यूज होता है या फिर कोई भी प्रिपरेशन जिसमें नार्कोटिक ड्रग होगा, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होगा, जैसे इंडियन हेम, गांजा, ओपीएम वगैरह, इसका जो अल्कोलाइड्स वगैरह जो है इसका प्रिपरेशन अगर किसी इसमें है तो दीज दीज प्रिपरेशंस आर ड्यूटेबल, तो उनका टैक्स भरना पड़ता है गवर्नमेंट को. उसके बेसिस पे अपने पास दो ऑप्शन है. एक तो पहले टैक्स भरो, पहले टैक्स भर देंगे आप तो उसको बोलेंगे नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी, और जब आप प्रोडक्ट होंगे आपके रिलीज तब आपको टैक्स भरना है तो उसको बोलेंगे बॉन्डेड लेबोरेटरी. ये आपने देखा था. नेक्स्ट पार्ट. So first definition of this session is illicit traffic. Illicit traffic मतलब क्या? Illicit traffic, it is a definition given under narcotic drug and psychotropic substances. Okay, so this definition is sometimes important. So illicit traffic means what? It includes cultivation, gathering of any part of coca plant, opium plant. Okay, so it includes cultivation or gathering of any part of these two plant, opium and coca. So opium and coca means erythroxylon coca family, erythroxylaceae. So it consists of cocaine, econine, methyl econine, etc., etc. So these are the psychotropic alkaloids, seen as stimulant alkaloids. Also it's a local anesthetic. Opium means papaverum somniferum. So there are narcotic alkaloids often from opium: morphine, codeine, thebaine, heroin, etc., etc. So these are the narcotic drugs. So illicit traffic means what? Illicit traffic means cultivation, gathering of any part of coca plant, opium plant, or engaging in the production, engaged in the production of production, manufacturing, sale, purchase, supply, distribution, transportation, import, export of these drug or narcotic drug and psychotropic substances. So that is nothing but the illicit traffic. Along with that, so if you are not engaged in the if you are not engaged in the cultivation, gathering of any part of this plant, not engaged in the production, manufacturing, sale, purchase, supply, distribution, transportation, import, export of these narcotic drugs, but you are financing it. आप खुद से नहीं कर रहे हो ये सब चीजें, लेकिन क्या कर रहे हो? आपके बिहाफ पे कोई दूसरा बंदा कर रहा है, आप उसको पैसे दे रहे हो. सो फाइनेंसिंग ऑफ एनी अबव एक्टिविटीज or letting use of your premises for carrying any one of the above activities. आप अगर उसको फाइनेंस करते हो तो नहीं यार मेरे भी आप पे तू ये काम कर, तो भी आप पकड़े जाओगे. उसके बाद अगर आप आपका आपके प्रीमाइसेस, आपका प्लेस है, आपका बंगला है या फिर कोई फार्म हाउस है या फिर कोई गोडाउन है या फिर कोई कोई भी जगह है उसका भी वहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर इलिसिट ट्रैफिक. सो इलिसिट ट्रैफिक मीन्स व्हाट? Cultivation and gathering of any part of coca plant, opium plant, engage in the
production, manufacturing, sale, purchase, supply, distribution, transportation, import, export of narcotic drugs and psychotropic substances. Along with that, also covers the financing of above activities, then handling or letting use of any premises for carrying out such activities. So all these are nothing with the illicit traffic. मतलब गैर कानूनी illicit traffic मतलब गैर कानूनी ये है. Next one is a definition of cannabis. What do you mean by cannabis? Okay, so charas, which is a crude and purified resin obtained from cannabis plant, including concentrated preparation. Charas, which is a resin obtained from cannabis plant, then its concentrated preparation. Okay, then this resin is also known as hashish oil. This resin is also known as hashish oil or liquid hashish. Okay, these then along with this ganja, that is a flowering tops of cannabis plant. Flowering top, जहाँ पे फ्लावरिंग होता है उसका, जो बर्ड्स होते हैं फ्लावरिंग होते हैं वो उसको बोलते हैं फ्लावरिंग टॉप्स, तो उसका ही यूज होता है. बट एक्सक्लूडिंग सीड्स एंड लीव्स, जो सीड्स होते हैं जो लीव्स होते हैं उसमें तो कोई अल्कलॉइड्स होता नहीं है, अगर होगा भी तो बहुत ही कम मात्रा में होता है. तो एक्सक्लूडिंग सीड्स एंड लीव्स. ओके, then any mixture of above material in any form or drink prepared from them, so that comes under the cannabis. So cannabis क्या है? It consists of a charas, which is a resin, purified resin obtained from cannabis plant, including concentrated preparation. It is known as a hashish oil or liquid hashish. Along with this ganja means flowering top of cannabis plant, excluding leaves and seeds. Then any mixture of above material or in any form or any drink prepared from the same. So those all things goes under the cannabis, under the Narcotic and Psychotropic Substances Act. ठीक है, उसके अंडर नार्कोटिक कमिश्नर होता है, नार्कोटिक ऑफिसर होता है, वो क्या है वो बाद में देख लेंगे. इलिसिट ट्रैफिक है कैनाबिस है. देन नेक्स्ट वन इज कोका डेरिवेटिव. So what do you mean by coca derivative? So crude cocaine, igonine and its derivative, methyl ester of benzyl igonine, and all preparation containing more than 0.1% cocaine. 0.1% cocaine उससे ज़्यादा है अगर किसी भी प्रोडक्ट में, तो उसको क्या बोलेंगे? कोका डेरिवेटिव. So any preparation containing more than 0.1% cocaine, that is a coca derivative under the Narcotic and Psychotropic Drug Act. Now next definition is ceiling price. Ceiling price, not a selling price. It is a ceiling price. So ceiling price, actually this definition comes under the Drug Price Control Order. Okay, DPCO Act. उसके अंडर में ये definition है ceiling price. So price fixed by government time to time for the scheduled formulation in the accordance with the provisions of paragraph G of DPCO Act. सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस जो है इट इज अ प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, है ना. जैसे अभी चल रहा है की हमारे खेत शेतीला हमी भाव द्या, हमी भाव म्हणजे फिक्स प्राइस, त्याच्यापेक्षा कमीही नाही, तेवढं तरी ॲटलिस्ट भेटणार, म्हणजे दॅट्स वाय हमी भाव जे असतं ना, हमी भाव त्याला असं म्हणतात सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट द prices fixed by government time to time for scheduled formulation. जो शेड्यूल है, शेड्यूल ए बी सी जो भी शेड्यूल्स है, शेड्यूल फॉर्मुलेशन के लिए एक प्राइस फिक्स करता है गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं सीलिंग प्राइस. गवर्नमेंट फिक्स करता है, उसके बाद में जो मैन्युफैक्चर रहे वो ऐड करते हैं, बाद में ये सब मैन्युफैक्चरिंग कन्वर्जन कॉस्ट पैकिंग कॉस्ट वो सब ऐड करते हैं. Okay, so selling price is given by government. It is decided by, it is fixed by government time to time on the scheduled formulation in accordance with the provisions of paragraph G, which is given in the drug price control order. Okay, DPCO एक्ट के पैराग्राफ जी में जो दिया है शेड्यूल्ड ड्रग्स, उसका प्राइस फिक्स करते हैं गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं सीलिंग प्राइस. ये जीपेट में आ गया था एक बार. देन प्री रिजर्व प्री टैक्स रिटर्न लैंडेड कॉस्ट, ये उतना लेस इंपॉर्टेंट है बट फिर भी अपन ले लें. व्हाट इज मीन बाय प्री रिजर्व? Pre-reserve created by appropriation of profit but not includes the reserve provided by
congenital liability, disputed claims and goodwill and includes the pre-reserve. ये फाइनेंशियल रिलेटेड है, इसका कुछ नहीं भी रखा दो, नहीं नहीं भी समझ में आया तो छोड़ दो. प्री टैक्स रिटर्न, जिसे आप टैक्स भरते हो, प्री टैक्स रिटर्न. सो प्रॉफिट बिफोर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स. सो प्रॉफिट बिफोर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स मतलब आप तक आप इनकम टैक्स नहीं भरते हो, इसके पहले क्या आप कुछ करते नहीं थे, क्या करते थे? तो प्रॉफिट बिफोर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स and surtax and include such other expenses which do not form part of cost of formulation. Landed cost, landed as the name indicate, land मतलब कौन लैंड करता है यहाँ पे प्लेन लैंड करता है, प्लेन लैंड करता है, ठीक है. लैंडेड कॉस्ट, प्लेन ने लैंड किया, प्लेन में क्या आ रहा है, आपका माल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, फॉरेन से आ रहा है. ओके, सो landed cost mean it means the cost of import of formulation inclusive of custom duty and clearing charges. मतलब जो भी आपने इंपोर्ट किया है माल, इंपोर्ट किया है ना एयरपोर्ट से, तो वहां पे कस्टम ड्यूटी लगेगा उसको, ठीक है. सो इट इज अ कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ फॉर्मुलेशन इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस. सो दैट इज नथिंग बट द लैंडेड कॉस्ट. कभी कभी ये कॉस्ट के बारे में पूछ लेते हैं क्वेश्चन. Next one is the retail price. So again, this slide is also under the DPCO Act, Drug Price Control Order Act. Okay. So retail price. So retail price, how you can calculate the retail price? इसके ऊपर भी एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है. तो fixed price for schedule formulation by government under provision of DPCO Act. The retail price of drug formulation calculated using formula. आपको मालूम है सेलिंग प्राइस क्या होता है, फिक्स किया होता है किसने, गवर्नमेंट ने, टाइम टू टाइम फॉर द शेड्यूल फॉर्मुलेशन. उसके बाद उसका फॉर्मुलेशन बनाने के बाद शेड्यूल फॉर्मुलेशन मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो ड्रग्स बनते हैं, ड्रग्स जो भी फॉर्मुलेशन बनते हैं, तो वो एक अभी जो कोरोना वायरस का क्राइसिस आया था, आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ने एक ड्रग अप्रूव किया था, 6 हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ठीक है. आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, 6 हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वाज अप्रूव्ड फॉर प्रोफिलैक्सिस ऑफ कोरोना वायरस और कोविड-19, ठीक है. तो दैट फॉर्मुलेशन इज शेड्यूल फॉर्मुलेशन. शेड्यूल मतलब वो सिर्फ गवर्नमेंट की कंपनी बनाएगी, बाकी कोई नहीं बनाएगा, गवर्नमेंट की कंपनी उसको बनाएगी, एंड दैट इज यूज्ड इन द पैंडेमिक कंडीशन. तो पैंडेमिक कंडीशन, जो जो नेशनल हेल्थ स्कीम होती है नेशनल, तो उसके लिए जो शेड्यूल फॉर्मुलेशन होती है उसके बाद में जो कॉमन पब्लिक के लिए आता है, वो उसका भी प्राइस कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग रिटेल प्राइस. सो रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला रिटेल प्राइस इज इक्वल टू MC plus CC plus PM plus PC into 1 plus MAP डिवाइडेड बाय 100 प्लस ED, ठीक है. अभी आरपी मीन्स क्या, आरपी इज इक्वल टू, आरपी मीन्स रिटेल प्राइस इज इक्वल टू एमसी, एमसी मीन्स मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, जो भी मटेरियल लगेगा उसका कॉस्ट कितना है, रॉ मटेरियल. देन सीसी, सीसी मस कन्वर्जन कॉस्ट, सीसी मीन्स कन्वर्जन कॉस्ट. देन पीएम, पीएम मीन्स पैकेजिंग मटेरियल, उसका एक्सपेंस. देन पीसी मीन्स पैकेजिंग कॉस्ट, उसको पैक करने के लिए कितना कॉस्ट होता है, इनटू 1 प्लस एमएपी. एमएपी क्या है, मैक्सिमम अलाउडेड पोस्ट मार्केटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय 100 इंटू ईडी. ईडी क्या है, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है. ये फॉर्मूला आपको याद रखो, ये लास्ट ईयर भी आया था, बहुत बार रिपीट में आया है. रिटेल प्राइस इज इक्वल टू एमसी प्लस सीसी प्लस पीएम प्लस पीसी इंटू 1 प्लस एमएबी डिवाइड बाय 100 प्लस ईडी. मैं दोबारा बोलता हूँ, आरपी इज इक्वल रिटेल प्राइस इज इक्वल टू एमसी प्लस सीसी प्लस पीएम प्लस पीसी. हमने तो ऐसे ही याद किया था, एमसी प्लस सीसी प्लस पीएम प्लस पीसी प्लस 1 प्लस एमएपी डिवाइड बाय 100 इंटू ईडी, ठीक है, हमने ऐसे ही किया था. तो रिटेल प्राइस इक्वल टू एमसी प्लस सीसी प्लस पीएम प्लस पीसी इंटू 1 प्लस एमएपी डिवाइडेड बाय 100 प्लस ईडी एक्साइज ड्यूटी, ठीक है. मटेरियल कॉस्ट, एमसी मीन्स मटेरियल कॉस्ट, CC means conversion cost, PEC means packaging charges, PM means packing material cost, ED means excise duty, and MAP means maximum allowable post marketing
marketing expenses. Now this MAPE, that is maximum allowable post marketing expenses, they are fixed by government. MAPE, maximum allowable post marketing expenses. अभी उसके लिए दो कैटेगरी बनाए हैं, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी. Category first is a, so MAPE for category A drug they are 75% and category B drug they are 100%. कैटेगरी ए ड्रग क्या होते हैं? ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम. जैसे मैंने बोला कोविड का सिचुएशन में जो था वो. कैटेगरी बी ड्रग क्या है? कैटेगरी बी ड्रग दे आर द ड्रग अदर देन कैटेगरी फर्स्ट ड्रग. ओके, सो कैटेगरी ए ड्रग के ऊपर क्या है? 75% मैक्सिमम अलाउेबल पोस्ट मार्केटिंग एक्सपेंसेस. ठीक है, और कैटेगरी बी पे कितना है? 100% है. कैटेगरी ए पे 75% है. किसका प्राइस कम होगा? ऑब्वियसली कैटेगरी ए ड्रग का जो है उसका जो कंज्यूमर के लिए जो प्राइस होगा वो कम होगा. ठीक है, क्योंकि ये कम प्राइस वाले ड्रग कहाँ पे यूज करेंगे? गवर्नमेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में. और कैटेगरी बी मतलब क्या? दीज ड्रग अदर देन कैटेगरी वन ड्रग. ठीक है. नो डिस्प्ले ऑफ प्राइस अंडर द डीपीसीओ एक्ट, कि ये एमआरपी कहाँ पे डिस्प्ले करना है? मतलब टैबलेट का बॉक्स है बड़ा, उसमें एक छोटा सा कागज थोड़ी डाल देंगे, वैसा नहीं चलेगा. उसके लिए भी प्रोविजंस होते हैं. सो फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, ओके, फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन द लाइन शुड बी देयर ऑन द स्ट्रिप और लाइन शुड बी देयर ऑन द पैकेज ऑफ योर प्रोडक्ट. फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन रिटेल प्राइस नॉट टू बी एक्सीड, ऐसा लिखा होना चाहिए, रिटेल प्राइस नॉट टू बी एक्सीड. और उसके बाद में प्रेसिडिंग इट, उसके बाद में क्या होना चाहिए? एंड लोकल टैक्स एक्स्ट्रा सक्सीडिंग इट. मतलब ये होना चाहिए शेड्यूल फॉर्मुलेशन के, रिटेल प्राइस नॉट टू बी एक्सीड लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा. तो पहले के ज़माने में था वैट टैक्स आया था, वैट 7% वैट ऐड करना पड़ता था. पहले जो भी एमआरपी है उसको करो प्लस 7% टैक्स भी ऐड करना पड़ता था, लोकल टैक्सेस. लेकिन आजकल वही नहीं. आजकल के आजकल सभी एक ही है, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस. ठीक है. फॉर नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशन मैक्सिमम रिटेल प्राइस प्रेसिडिंग इट इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, ये होना चाहिए अभी नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशन के लिए. शेड्यूल फॉर्मुलेशन के लिए क्या है? रिटेल प्राइस प्लस लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा. So important definitions, important points from various act. So here we have in column first and in second column comments. So in first one is a government analyst. गवर्नमेंट एनालिस्ट किसको बोलेंगे? आयरा गैरा कोई भी आके खुद को गवर्नमेंट एनालिस्ट नहीं बोल सकता. सो गवर्नमेंट एनालिस्ट, हु इज गवर्नमेंट एनालिस्ट? अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. ओके, सो डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट इज गिवन. So appointed by the central government or state government under the section 20A of the DNC Act. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो होता है उसके सेक्शन 20A के अंदर आपको गवर्नमेंट एनालिस्ट का अपॉइंटमेंट होता है ना. तो सो याद रखो गवर्नमेंट एनालिस्ट इज अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन 21A of DNC Act by central government or state government. Now what are the duties, what are the powers of this government analyst? I'm not going to tell you all the details, but if you want to read, you can read from any jurisprudence books. Okay, so main function of this government analyst is nothing but to analyze the test sample of drug and cosmetic. ये क्या करेगा? एनालिसिस करेगा किसका? ड्रग एंड कॉस्मेटिक का सैंपल का. अभी ये कहाँ से करेगा? ये सैंपल उसको कहाँ से मिलेगा? सैंपल सेट बाय ड्रग इंस्पेक्टर और अदर पर्सन एंड टू फर्निश द रिपोर्ट. उसको रिपोर्ट भी देना पड़ेगा, रिपोर्ट ऑफ रिजल्ट और ऑफ द टेस्ट एनालिसिस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर. इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर. देन ऑन अराइवल जब रिजल्ट आएगा, ऑन अराइवल एनालिस्ट रिसीव द सैंपल. जब उसके पास सैंपल आएगा तो ऑन अराइवल एनालिस्ट रिसीव द सैंपल बाय डीआई ने जब सेंड भेजा है उसको सैंपल तो वो रिसीव करेगा. इट विल चेक द सील
इट यहाँ पे जब DI जब सैंपल लेता है तो उसके ऊपर एक सील लगाता है, ठीक है। सो इट विल रिसीव द सैंपल sent by DI, then it will check the seal. After analysis, the government analyst has to supply the report of analysis in the triplicate, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में एक प्रिंट निकाला तो हो गया उसका, उसको ट्रिप्लीकेट में रिजल्ट देना पड़ता है, 3 डिफरेंट कॉपीज में रिजल्ट देना पड़ता है। इन द फॉर्म नंबर 30, फॉर्म नंबर 30 है, उसके उसके फॉर्मेट में ट्रिप्लीकेट में रिजल्ट देना पड़ता है, ठीक है। नाउ ड्रग इंस्पेक्टर, next one is drug inspector. So drug inspector is also appointed under the section 21 of the DNC Act. It was question in GPAT 21. कौन से सेक्शन के अंडर DI का अपॉइंटमेंट होता है? ओके, सो ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन ऑफ 21 of the Drug and Cosmetic Act 1940. ठीक है। So now what are the powers of drug inspector? What are the functions of drug inspector? वो सब बाद में आप बुक में देख लेना, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैंने समराइज किया है। सो ड्रग इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट एनी प्रेमाइसेस, functions of DI to inspect any premises where drug and cosmetic are being manufactured, tested, stocked, distributed, exhibited to sell, ठीक है। मतलब जहाँ पे भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, स्टॉक किए जाते हैं, रखे जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सेल करने के लिए, तो वहाँ पे जाके वो इंस्पेक्ट करेगा। ओके, देन टू टेक ए सैंपल्स ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक, वहाँ से उसको लगता है कि यार यहाँ पे कोई घपला हो रहा है, तो वहाँ पे वो सैंपल्स भी ले सकता है, ठीक है। सो ही कैन टेक ए सैंपल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, कैन स्टॉप एंड सर्च एनी व्हीकल फॉर एनी कन्वीनियंस और कैरिंग द ड्रग एंड कॉस्मेटिक। मतलब वो कोई भी, जो भी कोई भी व्हीकल है, आपका गाड़ी है या ट्रक है या टेम्पो है, कुछ भी, उसको स्टॉप कर सकता है, उसको सर्च कर सकता है, ठीक है। उसको सर्च कर सकता है, देख सकता है कि अंदर क्या है क्या नहीं। अगर उसको कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई कि यहाँ से ड्रग, इलीगल ड्रग कैरी किए जाए तो, ठीक है। इन रेफरेंस विद द ऑफेंसेस, इन रेफरेंस ऑफ द ऑफेंसेस हैज बीन कमिटेड और बीइंग कमिटेड। मतलब अगर किसी ने इंफॉर्मेशन दे दी यहाँ पे इलीगल तरीके से रेमडेसिविर सेल हो रहा है, क्या हो रहा है, रेमडेसिविर सेल। अभी तो कोरोना वायरस की क्राइसिस में कितना रेमडेसिविर का काला बाजार था। तो अगर किसी ने इंफॉर्मेशन दे दी कि सर यहाँ पे रेमडेसिविर का टेम्पो जा रहा है, रेमडेसिविर का व्हीकल जा रहा है, तो दैट इन DI कैन स्टॉप दैट व्हीकल, कैन सर्च, ओके, दैट। नाउ duties of drug inspector. So there are a lot of duties of drug inspector and there are a lot of powers of drug inspector, which is given in the book. If you want to, you can read. But whatever is important, I have mentioned here. Then again, duties to inspect at least twice a year all premises for license for sale of drug and cosmetic. मतलब कम से कम एक साल में 2 बार तो भी उसने विजिट करना चाहिए, इंस्पेक्ट करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए, किसका, जहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक क्या हो रहे, सेल हो रहे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक सेल हो रहे। मतलब कहाँ पे होता है सेल, ये अपना रिटेल स्टोर, रिटेल फार्मेसी। टू इंस्पेक्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर ऑल द प्रीमाइसेस लाइसेंस फॉर सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट मेड, टू हिम इन अ राइटिंग। अगर आपका दुकान है, आपका मेडिकल है, किसी ने कंप्लेंट मार दिया DI को कि यहाँ पे ना, यहाँ पे इलीगल तरीके से ये पिल्स मिलते हैं, अबॉर्शन के पिल्स मिलते हैं, आपके यहाँ पे कंप्लेंट मार दिया, तो DI को कंप्लेंट गई तो DI क्या करेगा, इंस्पेक्शन के लिए आएगा आपके फार्मेसी में इंस्पेक्शन करेगा, वो देखेगा कि इस कंप्लेंट में जो बोला है वो सही है कि नहीं। अगर उसको मिल गया तो आपके मेडिकल को सील कर देगा और आपका लाइसेंस जब्त कर देगा। टू इंस्पेक्ट द एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, याद रखो ट्वाइस अ ईयर, किसी किसी बुक में वंस अ ईयर दिया है, लेकिन बहुत सारे बुक्स में ट्वाइस अ ईयर दिया है। ये क्वेश्चन आ चुका है। सो DI कैन इंस्पेक्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर ऑल द प्रीमाइसेस वेयर ड्रग एंड कॉस्मेटिक आर बीइंग सोल्ड or to investigate the complaint made to him in a writing. Then to inspect at least twice a year all the premises licensed for manufacturing of drug and cosmetic, मतलब कंपनी, ठीक है।
मतलब ये मेडिकल शॉप को भी इंस्पेक्ट करेगा, कंपनी को इंस्पेक्ट करेगा। कंपनी के यहाँ पे भी, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है फार्मास्यूटिकल कंपनी की, वहाँ भी जाएगा और यहाँ पे भी इंस्पेक्ट कर सकता है। सो टू इंस्पेक्ट एटलीस्ट ट्वाइस इन a year all premises license for manufacturing of drug and cosmetic to ensure the condition of license। टू इंश्योर द कंडीशन ऑफ लाइसेंस मतलब क्या, आपको लाइसेंस दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कि पैरासिटामोल का टैबलेट बनाओ, पैरासिटामोल का लाइसेंस दिया है, और आप एसिक्लोफेनेक का भी टैबलेट बना रहे हो चोरी 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 चोरी। मतलब आपके पास सिर्फ एक लाइसेंस है, कौन सा, पैरासिटामोल टैबलेट 500 मिलीग्राम का टैबलेट का लाइसेंस है आपके पास बनाने का, और आप उसके ऐड में आप क्या कर रहे हो, एसिक्लोफेनेक का भी लाइसेंस नहीं है आपके पास उसका, उसके ऐड में आप बना रहे हो, तो वो एसिक्लोफेनेक आप इलीगली बना रहे हो उसके। टू इंस्पेक्ट द एटलीस्ट ट्वाइस a year all the premises for manufacturing of drug and cosmetic to ensure the conditions of life। वही देख रहा है, वो देखता है कि सब कुछ सही है, सब जिसका लाइसेंस है उसी की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या फिर दूसरा भी कुछ हो रहा है। टू इंश्योर द कंडीशन ऑफ लाइसेंस आर बीइंग ऑब्जर्व और नॉट, वही। then next one is a narcotic commissioner। now this narcotic commissioner is appointed under the narcotic drug and narcotic drug and psychotropic act। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स द नार्कोटिक कमिश्नर to supervise the cultivation of opium poppy and production of opium to give effect to the provisions of the law। The state government can also appoint such commissioner for their territory। इसका मतलब ये है कि अगर आपको, आप बोल रहे हैं सर खेती में कुछ माल ही नहीं होता, पड़ता नहीं, कुछ भी इनकम नहीं होता खेती में, नहीं अभी मैं ये ट्रेडिशनल खेती बंद करूंगा, मैं ऑनियंस का खेती बंद करूंगा, मैं शुगर केन का खेती बंद करूंगा, मैं कपास नहीं लगाऊंगा, मुझे लगाना है क्या, ओपीएम। ओपीएम लगाना है आपको, तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है। गवर्नमेंट वहाँ पे पूरा जो एरिया है आपका, उसका जो फील्ड है उसका सॉइल इंस्पेक्शन करती है, पूरा इंस्पेक्शन होता है आपका पूरा एरिया। अगर वहाँ पे गवर्नमेंट ने कर दिया आपको सैंक्शन, तो वहाँ आगे पूरा एरिया पे कंपाउंड रहता है पूरा, और वहाँ पे पुलिसमैन रहते हैं दो, 24 आवर्स। वहाँ पे गवर्नमेंट का एक ऑफिसर रहता है, नार्कोटिक ऑफिसर। ठीक है, तो ये सब होता है। तो ऐसे ही नहीं आके कोई भी उठा के खेती कर सकता है गांजा की या फिर कोई ओपीएम की, उसके लिए लाइसेंस लगता है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो नार्कोटिक कमिश्नर क्या है, नार्कोटिक कमिश्नर इज अंडर, इट इज अपॉइंटेड अंडर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट द नार्कोटिक कमिश्नर टू सुपरवाइज द कल्टिवेशन ऑफ ओपीएम पॉपी एंड प्रोडक्शन ऑफ ओपीएम टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। मतलब जो भी टर्म्स, जो भी लॉज है उस एक्ट के अंदर, वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, उसके लिए क्या है, नार्कोटिक कमिश्नर रहते हैं। ठीक है, देन स्टेट गवर्नमेंट कैन आल्सो अपॉइंट सच कमिश्नर फॉर देयर टेरिटरी। उनके एरिया के लिए वो अपॉइंट कर सकते हैं वैसा। नेक्स्ट वन इज प्लेसेस थ्रू विच ड्रग कैन बी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया। समटाइम्स दे, ये भी क्वेश्चन पूछा था एक बार, प्लेसेस कौन सी प्लेस है जहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो ड्रग इंडिया में। ठीक है, सो इंपोर्ट कैसे कर सकते हो, बाय रेलवे कर सकते हो, बाय सी कर सकते हो, या फिर बाय एयर, मतलब हवाई हवाई रास्ते से ला सकते हो आप ड्रग, या फिर पानी के रास्ते से ला सकते हो, या फिर रेलवे से ला सकते हो। लेकिन कहाँ कहाँ से, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के लेके आएंगे पकड़े जाओगे, ऐसा नहीं। उनके लिए उन्होंने स्पेसिफिक सिटी अप्रूव किए है। सो प्लेसेस थ्रू विच ड्रग कैन बी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया। बाय रेलवे यू कैन इम्पोर्ट अ ड्रग फ्रॉम फिरोजपुर, cannot meet, then Amritsar railway station। Okay, so these two are there, Firozpur cannot meet area, Amritsar railway station, from these two places you can import a drug from Pakistan by railway। पाकिस्तान में तो वैसे ड्रग नहीं बनते कोई, वहाँ पे सिर्फ ओपीएम, चरस, गांजा वही बनते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, जो ड्रग ऑफ एबल्स वही बनते हैं उनके। देन बाय सी, आप समुद्र के रास्ते से क्या, कहाँ कहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो। So Madras, Kolkata, Bombay, Cochin and Visakhapatnam. From these cities you can import your drug by the route of sea। सी रूट से यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो इस सिटी में से, मतलब यहाँ पे आएगा वो, विशाखापट्टनम, कोची, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास।
बाय एयर इंपोर्ट करना है तो कहाँ कहाँ से ला सकते हो? सबसे पहले इंपोर्ट करने के बाद मद्रास से आएगा, मद्रास पे आएगा, या कलकत्ता, बॉम्बे या दिल्ली या अहमदाबाद. So these are the city through from where you can import your drug. क्लासेस ऑफ ड्रग प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड इन इंडिया. कि कौन से ड्रग आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो. क्लासेस ऑफ ड्रग प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड इन इंडिया. कि किसके ऊपर प्रतिबंध है. प्रोहिबिशन मतलब क्या? प्रतिबंध, है ना. प्रोहिबिशन मतलब प्रतिबंध. सो क्लासेस ऑफ ड्रग प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया. कौन से ड्रग का इंपोर्ट नहीं कर सकते आप. सो अडल्टेटेड ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन हुज फॉर्मूला हैज नॉट डिस्क्लोज्ड. अगर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन है जिसका कोई फॉर्मूला मेंशन नहीं किया है तो उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते आप. हाँ, अगर फॉर्मूला मेंशन किया है तो आप कर सकते हो. ठीक है. अडल्टेटेड मिसब्रांडेड स्पूरियस ड्रग का भी नहीं कर सकते. ड्रग क्लेमिंग टू क्योर शेड्यूल जे डिसीज. अगर ऐसे ड्रग का भी इंपोर्ट नहीं कर सकते. सो इन ए ड्रग इज क्लेमिंग टू क्योर डिसीज मेंशन इन द शेड्यूल जे, वो भी ड्रग का आप इंपोर्ट नहीं कर सकते. ड्रग विदाउट थेरेपेटिक वैल्यू. ऐसा भी ड्रग कोई आप इंपोर्ट नहीं कर सकते कि उसका कोई यूज ही नहीं है, थेरेपेटिक वैल्यू ही नहीं है. Injurious to animal. You cannot import any drug which is injurious to animal. These are the classes of drug that cannot be imported in India. Then duration of import license. Import license कितने साल के लिए वैलिड रहता है. आपने अगर इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है तो इंपोर्ट लाइसेंस निकालना पड़ता है. और दैट इंपोर्ट लाइसेंस विल बी वैलिड फॉर 3 years. Sorry. So import license is valid for 3 years. And if your import license is suspended, you have to apply for fresh license. Okay, so duration of import license validity is 3 years, and if it is suspended by any reason, then you have to apply freshly. Then loan license वैलिडिटी 5 year. अभी लोन लाइसेंस का वैलिडिटी 5 year. अब बोलेंगे सर लोन लाइसेंस क्या है. अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इफ यू डोंट हैव एनी प्रीमाइसिस, इफ यू डोंट हैव योर ओन फैसिलिटी, your own infrastructure to manufacture a drug, but still if you want to manufacture a drug or if you want to formulate a formulation, then you can apply for loan license. मतलब क्या कि अगर आपके पास में कंपनी नहीं है, आप खाली हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका आपको आपको ये करना है कि नहीं यार मुझे फॉर्मुलेशन बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, लोन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो. तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोन लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. तो ऐसी कोई कंपनी ढूंढना पड़ेगा आपको कि जो आपको मैन्युफैक्चर करके दे सकती है. तो वह आपको लोन लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. अप्लाई करने के बाद जो कंपनी आपने बोला है वहाँ जाके इंस्पेक्शन हो जाएगा आपका आपका और मतलब वो कंपनी एज अ आपकी कंपनी है ऐसा ट्रीट किया जाएगा. वहाँ इंस्पेक्शन होगा और फिर आपको लाइसेंस मिल जाएगा, लोन लाइसेंस. सो दैट इज वैलिड फॉर 5 years. सो इफ यू गॉट अ लोन लाइसेंस, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कंपनी हो गई कभी कितने भी दिन छापो टेबलेट, वैसा नहीं. सिर्फ 5 साल के लिए वैलिड रहता है लोन लाइसेंस. देन लाइसेंस टू सेल द ड्रग. लाइसेंस टू सेल द ड्रग जो आपका रिटेल लाइसेंस होता है. नाउ लाइसेंस टू सेल द ड्रग, इट इज वैलिड अप टू 31st December ऑफ द ईयर. हर साल में आपको उसको रिन्यू करना पड़ता है. लाइसेंस टू सेल वैलिड अप टू 31st December ऑफ ईयर. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए थे. So license to sell a drug and cosmetic by retail is valid up to 31st December of the year. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. Then you have to renew within a 6 month of expiry. अगर एक्सपायर हो गया और 6 महीने के अंदर आपने रिन्यू नहीं किया तो आपका आपका जो भी फार्मेसी है उसको क्लोज करना पड़ेगा. Now schedule W drugs. मैंने बोला था आपको when we was discussing about the schedules to the rule. ठीक है. शेड्यूल A B C D E F G H J जो भी है अपने शेड्यूल देखा था उसमें एक शेड्यूल W था. शेड्यूल W मीन्स लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग्स. ठीक है. शेड्यूल W मीन्स लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग्स. सो लिस्ट ऑफ ड्रग्स which are marketed under generic names only.
तो ये कौन से ड्रग्स होते हैं, मैंने बोला था आपको उस टाइम पे, अनाल्जिन, अनाल्जिन नाम का एक ड्रग है, इट इज अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग अनाल्जिन। देन एस्पिरिन, यहाँ पे देखो एस्पिरिन, एस्पिरिन का टैबलेट है तो उसके ऊपर लगा एस्पिरिन का टैबलेट तो उसके ऊपर लिखना पड़ेगा कि एस्पिरिन टैबलेट आईपी या फिर एस्टिल सैलिसिलिक एसिड टैबलेट आईपी। तो क्रोसिन आपका ये सॉरी आपका जो बाकी जो है डिस्प्रिन, डिस्प्रिन इज अ ब्रांड नेम, डिस्प्रिन क्या है ब्रांड नेम है, और एस्पिरिन क्या है उसमें का ड्रग है, और उसका जेनरिक नेम क्या है एस्टिल सैलिसिलिक एसिड। तो एस्पिरिन के टैबलेट के ऊपर देखो आप एस्टिल एस्टिल सैलिसिलिक एसिड टैबलेट आईपी लिखा होगा, वो होगा उसका जेनरिक नेम। सो these are the drug which should be marketed under the generic name only, aspirin and its salt, then chlorpromazine and its salt, then ferrous sulfate, then piperazine and its salt। तो मतलब इतने ड्रग है, अनाल्जिन है आपका, एस्पिरिन है, क्लोरोप्रोमाजिन है आपका, उसके बाद फेरस सल्फेट है आपका, ये बोला था मैंने आपको फेरस सल्फेट के बारे में, पिपराजिन है, ये जो ड्रग है वो दीज ड्रग्स शुड बी मार्केटेड अंडर द जेनरिक नेम ओनली। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लोरमफेनिकॉल भी बोला था आपको लेकिन वो नहीं है। ठीक है, सो शेड्यूल डब्ल्यू ड्रग्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है 100%। शेड्यूल डब्ल्यू ड्रग्स कौन से है, एनाल्जिन, एस्पिरिन एंड इट्स सॉल्ट्स, देन क्लोरप्रोमाजिन एंड इट्स सॉल्ट्स, देन फेरासल्फेट, देन पिपराजिन एंड इट्स सॉल्ट्स। जो क्लोरप्रोमाजिन सल्फेट है, क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड है, क्लोरप्रोमाजिन जितने भी सॉल्ट्स है उसको हाइड्रोक्लोरोप्रोमाजिन जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उसके, क्लोरप्रोमाजिन सल्फेट, सल्फेट सॉल्ट, क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट है, पिपराजिन साइट्रेट, पिपराजिन साइट्रेट नाम का सॉल्ट है। ठीक है, तो उसको भी आपको, सो दिस ड्रग यू हैव टू मार्केट अंडर द जेनरिक नेम ओनली। द नेक्स्ट वन इज शेड्यूल वाई। सो शेड्यूल वाई इज नथिंग बट द clinical trials. Okay, so written informed consent from form should be obtained from every subject participating in the clinical trials. ठीक है, guidelines for clinical trials is given in the schedule Y. Guidelines for conducting the clinical trials is given under the schedule Y. And for that conducting the clinical trials you need a subjects. आपको आज सब्जेक्ट लगे ना उसके लिए कि क्लिनिकल ट्रायल किसके ऊपर करोगे आप, सब्जेक्ट तो लगे ना पेशेंट्स। तो वो पेशेंट जो होते हैं, सो रिटर्न इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कंसेंट फॉर्म आपको लेना पड़ता है हर एक से, कि अगर इस स्टडी के दौरान मुझे कुछ, मेरी जान को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप नहीं होंगे, ऐसा लिख के लेना पड़ता है उनसे। ठीक है ना, जैसे आप हॉस्पिटल में जाके एक साइन करते हो कि ट्रीटमेंट के दौरान अगर पेशेंट को कुछ होता है तो डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। ऑपरेशन के पहले आप जब कौन सा भी ऑपरेशन कर लो, कौन सा भी, जैसे सिंपल अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी है आपका, तो आपसे एक राइटिंग में कंसेंट लेते हैं कि अगर इस ऑपरेशन के दौरान, अगर इस सर्जरी के दौरान अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो डॉक्टर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा भाई, डॉक्टर नहीं होगा। तो मतलब ऐसा होता है। ठीक है ना, दैट इज अ कंसेंट फॉर्म, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। सो ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स यू हैव टू give your drug into various subjects, and for that subject while selecting the subject you have to take a written informed consent from that, from every subject participating in the every clinical trial. The consent form should be authorized by ethical committee. ethical committee जो होता है ethical committee वही आपको अप्रूवल देते हैं, अप्रूवल देते हैं। इथिकल कमेटी का अप्रूवल के बिना आप क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट नहीं कर सकते, इवन प्री क्लिनिकल ट्रायल्स भी नहीं कर सकते। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भी एनिमल इथिकल कमेटी होता है, मतलब आपके स्वार्थ के लिए आप किसी भी एनिमल को हार्म नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ता है, एनिमल इथिकल कमेटी होती है इसकी। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए क्या होता है, इथिकल कमेटी। आर यू गेटिंग और नॉट, हेलो हेलो हेलो, अरे है क्या कोई, सो गए सब, सो मत जाना, ये सब इम्पोर्टेंट है। एक बार आप ही से अगर आपने प्रॉपरली देख लिया है उसको तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं। ओके, नाउ मेंबर्स ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, डीटीएबी। अभी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एज द नेम इंडिकेट ड्रग टेक्निकली
ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। अब ये क्या है, बोर्ड है, किसका है, एडवाइजरी बोर्ड है। किसके ऊपर एडवाइस देगा ये, ड्रग के ऊपर, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो इसके फंक्शन क्या होंगे वो आप बाद में पढ़ लो, अदरवाइज आपको समझ में भी आ सकता है। सो DTAB इज द बोर्ड which is which give a advice, technical advice about the medication to the central government and state government। ये बहुत सारे बाकी उसके फंक्शन है वो देख लो। नाउ इसमें जो मेंबर्स होते हैं, सो टोटल मेंबर्स ऑफ DTAB इज 18, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 18 members are there, DTAB has a total 18 members, so in that also elected members, nominated member and ex officio members। so elected member कितने होते हैं elected members, पहला है, one teacher from pharmacy background is elected by executive committee of PCI, pharmacy council of India से जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें क्या एक टीचर इलेक्ट किया जाएगा। दूसरा क्या है, वन टीचर फ्रॉम मेडिसिन एंड थेरापेटिक इलेक्टेड बाय MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये ठीक है। तीसरा फार्माकोलॉजिस्ट बाय ICMR। चौथा पर्सन बाय सेंट्रल काउंसिल ऑफ CMA। वन पर्सन बाय इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। मतलब 1 2 3 4 5, so 5 elected members are there, 5 elected members, same 5 nominated members are also there। so 2 persons are nominated by state government from the in charge, 2 persons nominated by state government from in charge DCO in the state, then 1 person nominated by central government from pharma industry, 2 government analysts nominated by central government। ऐसे 5 नॉमिनेटेड 5 इलेक्टेड और 8 होते हैं आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आता, इसके ऊपर आता है, ये जो एक्स ऑफिशियो मेंबर है उसके ऊपर आता है। सो ऐसा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ DTAB, बहुत बार आ चुका है। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आपको याद रखना है। सो कौन से होते, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, DGHS, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, and this director is also a chairman of this DTAB board। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था, वो वन ऑफ द फॉलोइंग इज चेयरमैन ऑफ DTAB, और वो आपको ऑप्शन देंगे। सो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज is the first ex officio and he is also a chairman। then next is the drug controller of India, DCO of India। थर्ड एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर ऑफ CDL कोलकाता, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी जो कोलकाता है उसका डायरेक्टर भी एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेगा। डायरेक्टर CRI, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली का जो CRI है उसका भी डायरेक्टर इसमें रहेगा। डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRC, इज्जत नगर, इसका भी डायरेक्टर रहेगा। प्रेसिडेंट ऑफ PCI, फार्मेसी काउंसिल का इंडिया का प्रेसिडेंट जो है वो भी रहेगा। प्रेसिडेंट ऑफ MCI, मेडिकल काउंसिल का प्रेसिडेंट। डायरेक्टर ऑफ CDRL लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी जो है लखनऊ का, उसका भी डायरेक्टर इसमें रहेगा। ये टोटल देर आर टोटल 8 मेंबर्स, आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। so 8 members are ex officio member, 5 members are nominated, 5 members are elected। so this is the technically advisory board and their members। next one is members of pharmacy council of India, PCI, Pharmacy Council of India, or it is also known as the Central Council। Okay, it is also known as Central Council। So total there are 19 members, इसमें 19 members होते हैं। देखो इसके functions क्या है, उसका functions क्या है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के, ये एजुकेशन रेगुलेशन क्या है वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देख, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो ये इसके मेंबर्स कितने होते हैं, टोटल 19। सो 6 इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर। अगेन इलेक्टेड मतलब क्या, इनका इलेक्शन होके जो जीतता है वो इलेक्टेड मेंबर होता है। नॉमिनेशन मतलब क्या, नॉमिनेशन मतलब किसी ने नॉमिनेट कर दिया तो वो गवर्नमेंट ने नॉमिनेट कर दिया तो नॉमिनेशन हो गया उसका। एक्स ऑफिशियो मेंबर से 6 members amongst 6 members are elected amongst which at least one teacher from the
Subject of pharmacy, pharmaceutical chemistry, pharmacology, pharmacognosy, elected by UGC, University Grant Commission, from the amongst the teacher of Indian universities or affiliated courses imparting diploma or degree in pharmacy. मतलब 6 टीचर को आपको इलेक्ट करना है. कहाँ से? यूजीसी से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से. देन वन मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम amongst the members of मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. ठीक है, 6 होंगे आपके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के इलेक्टेड मेंबर्स. यहाँ से 6 इलेक्ट होके पीसीआई में जाएंगे. यहाँ से एक जाएगा. कहाँ से? वन मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. वन मेंबर इज इलेक्टेड बाय ईच स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड शुड बी फार्मासिस्ट. मतलब हर एक स्टेट का जो फार्मेसी काउंसिल है उसमें का एक इलेक्टेड मेंबर पीसीआई में रहेगा, सेंट्रल काउंसिल में रहेगा. मतलब 6 कहाँ से आएंगे? आपके टीचर्स से आएंगे, है ना. मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वहां से 6 मेंबर आएंगे. एक आएगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, एक आएगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल से. इलेक्ट हो गया, मतलब अमोंग्स देमसेल्फ. इसका इलेक्शन कब होगा? जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके जितने भी टीचर्स है उनके अंदर ही इलेक्शन होता है और वहां से 6 मेंबर्स इलेक्ट होके पीसीआई में जाते हैं. एमसीआई का, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जितना भी मेंबर्स है उनमें इलेक्शन होगा, वहां से एक मेंबर इलेक्ट होके आ जाएगा. जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल होता है उनके जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें इलेक्शन होगा, वहां से इलेक्शन होके जो जीतेगा वो इधर जाएगा. ठीक है. सो टोटल 8 elected members are there in the Pharmacy Council of India. Now nominated member, 6 members nominated by Government of India, Ministry of Health and Family Welfare. Okay, ये 6 members nominate करेंगे. कौन करेंगे nominate? Government of India, Family, Ministry of Family, Health Care and Family Welfare. ये मिनिस्ट्री, हेल्थ केयर मिनिस्ट्री जो है वो 6 मेंबर नॉमिनेट करेगा. अभी उसमें के 4 कम से कम क्या होना चाहिए? सो of which 4 should possess a degree or diploma in the pharmacy and should be practicing pharmacy or pharmaceutical chemistry. उसमें ये जो 6 है उसमें से 4 कम से कम डिग्री डिप्लोमा होल्डर चाहिए. Then again one member is nominated from the representative of each UGC and AICTE. AICTE से और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से एक एक मेंबर नॉमिनेट किया जाएगा. One member of each state government who should be registered pharmacist nominated by respective state और यूनियन टेरिटरी. मतलब देखो आप, यहाँ 6 हो गए, ये हो गए 7, ये हो गए 8, टोटल 8 मेंबर होंगे. अगर इन्होंने अलग अलग दे दिए, यूजीसी ने और एआईसीटी ने अलग अलग मेंबर दे दिए तो 9 हो जाएंगे. मतलब टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड 8/9, 8 हो गए या 9 हो गए. Then ex officio members, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो खुद आएगा या फिर उसका कोई नॉमिनी है. देन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और नॉमिनेटेड बाय देम. एक डीजीसीओ, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, वो आएगा या फिर उसका नॉमिनेटेड मेंबर. डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, डीसी डायरेक्टर जो है वो एक आएगा. मतलब एक्स ऑफिशियो मेंबर कितने हैं? यहाँ पे 3. इलेक्टेड मेंबर कितने हैं? 8. ये नॉमिनेटेड 8 और ये एक्स ऑफिशियो 3. 8 + 8 + 3 19 टोटल. ठीक है. अब इस ये होगा आपका सेंट्रल काउंसिल. अब इस सेंट्रल काउंसिल का फंक्शनिंग क्या है? इसके 2-4 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, मैं बोल देता हूँ आपको. टू फ्रेम एजुकेशन रेगुलेशन, एजुकेशन रेगुलेशन बनाना, कोई कॉलेज को अप्रूव करना, वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन करके अप्रूव करना, टू गिव अप्रूवल फॉर द वेरियस इंस्टीट्यूशन, टू विड्रॉ द अप्रूवल. उसके बाद मेंटेनिंग ऑफ सेंट्रल रजिस्टर, जो सेंट्रल रजिस्टर होता है फार्मासिस्ट का वो मेंटेन करना है. उसके बाद में रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन, अगर कोई बंदा फॉरेन से फार्मेसी हुआ है और वो इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसका रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा पीसीआई को. तो उसके लिए एग्जाम लेगा, अगर वो पास हो गया तो उसको बोलेगा ठीक है चल तेरे को लाइसेंस देता हूँ, जो भी डांस करना है इंडिया में आके कर, ऐसा. तो ये 2-4 फंक्शन है. अभी उसके बहुत सारे फंक्शन है, आप देख सकते हो बुक में. बस इतना याद रखो कि सेंट्रल काउंसिल
वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू मेंटेन द सेंट्रल रजिस्टर इन ट्रिप्लिकेट, 3 कॉपी होता है उसका सेंट्रल रजिस्टर का। मतलब ठीक है, ये सेंट्रल रजिस्टर कैसे होता है कि आप जहाँ पे स्टेट में जहाँ पे भी आपने डिग्री किया डिप्लोमा किया वहाँ के स्टेट का आपको रजिस्टर करना पड़ता है फार्मासिस्ट, ठीक है। तो वो रजिस्टर डायरेक्टली कॉपी होता है सेंट्रल रजिस्टर में, उसके 3 कॉपी बनती है, ठीक है। एंड रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन, अप्रूवल डिसअप्रूवल ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल दैट। नो मेंबर्स फॉर द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ये तो होगा सेंट्रल पहला। अभी स्टेट में भी एक काउंसिल होता है, ठीक है। स्टेट, हर एक स्टेट का काउंसिल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अगर कोई स्टेट बोलता है कि हमारा स्टेट बहुत ही छोटा है और हमको पूरा के पूरा काउंसिल का जरूरत नहीं है, ऐसे दो छोटे छोटे स्टेट आके, 2 या 3 छोटे छोटे स्टेट आके, इफ दे आर एग्री टुगेदर दे कैन फॉर्म ए जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, joint state pharmacy council. Okay, so we'll see the members. So state pharmacy council, here joint state pharmacy council. So first one is elected members. So state pharmacy council में elected members कितने होंगे? 6 members are elected by registered pharmacist of state. जो pharmacist होंगे उसमें के 6 member elected होंगे। One registered medical practitioner elected by medical council of India, medical council of state, sorry, जो स्टेट का मेडिकल काउंसिल है उसमें से एक मेंबर इलेक्ट होके आएगा। जो स्टेट की फार्मासिस्ट है उसमें के 6 मेंबर इलेक्ट होकर जाएंगे, कहाँ पे? स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, ठीक है। ये हो गए इलेक्टेड मेंबर। नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स बाय स्टेट, आउट ऑफ 3 शुड बी हैव डिग्री और डिप्लोमा, और डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होना चाहिए उनका, 5 में से 3 का कम से कम, दे आर नॉमिनेटेड। देन एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल, a chief administrative officer or in charge of medical and health services state और their nominee, वो भी हो सकता है या फिर उसने कोई किसी को नॉमिनेट किया है। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ स्टेट और इट्स नॉमिनी, ऑफिसर इन चार्ज है डीएनसी एक्ट का ऑफ स्टेट। वन गवर्नमेंट एनालिस्ट नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये हो गए एक्स ऑफिशियो। अभी जॉइंट स्टेट फार्मेसी का क्या है, इलेक्टेड मेंबर कितने रहेंगे? 3 to 5 members are elected from registered pharmacist from participating state। मान लीजिए कि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, वहाँ पे स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, लेकिन अगर कोई छोटा राज्य है जैसे मिजोरम हो गया है ना, तो मिजोरम छोटा है, जैसे गोवा हो गया तो छोटा है, तो ये 2 और एक 2 ऐसा 2-4 मिला के क्या करेंगे, वो बोलेंगे हमको ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाना है, मतलब सबका साथ सबका होगा। वो क्या करेंगे, 2-3 स्टेट कंबाइन करके वो बनाएंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। और एक याद रखो कि फार्मेसी जो भी काउंसिल होता है उसका उसका टर्म जो होता है, टर्म पीरियड वो 5 साल का होता है, ठीक है। सो 5 इयर्स के लिए रहेंगे काउंसिल। 5 ईयर के बाद 5 साल के बाद क्या होगा, री इलेक्शन होगा, रीनॉमिनेशन होगा। जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में क्या होता है, 3 to 5 pharmacists, they are elected from each participating state, one registered medical practitioner elected by medical council of India from each participating state। अभी nominated कितने हैं, 2 to 4 members are nominated from each participating state of which more than 50% should have pharmacy background। और उसके बाद में ex officio member कौन से, chief administrative office in charge of medical and health services of each participating state or its nominee, then officer in charge of DNC Act, each participating state or its nominee, one government analyst nominated by each participating state। ये हो गए एक्स ऑफिशियल मेंबर। स्टेट फार्मेसी काउंसिल का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पीसीआई का इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। और दोनों का टर्म जो होता है वो होता है 5 साल। अगर किसी मेंबर का डेथ हो गया इलेक्शन में, अगर पीसीआई का मेंबर है उसका बीच में डेथ हो गया, 5 साल नहीं टिक पाया, उसकी जगह उसकी वैकेंसी फिर से वो अगर नॉमिनेटेड है मेंबर तो उसका नया नॉमिनेशन होगा दूसरा मेंबर का। अगर वो इलेक्टेड है तो फिर से एक इलेक्शन होकर उसका नाम जाएगा नया वाला।
Now important points from Medical Termination of Pregnancy Act. ये MTP है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है ना, उसके अंडर कहाँ कहाँ पे आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो. सो कंडीशंस फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, अगर बाय चांस आपका किसी का प्रेगनेंसी हो जाता है और उसको एबॉर्शन कराना है या फिर टर्मिनेशन करना है प्रेगनेंसी का, तो उसके लिए कौन से नियम है. ठीक है, सो वन कैन नॉट वन कैन वन ओके. So conditions for medical termination of pregnancy. So medical pregnancy can be terminated medically. It can be done by only registered medical practitioner (RMP). Registered medical practitioner. It should be usually MBS MD, gynecology and obstetrics. MBS MD gynecologist होना चाहिए, वही आपका प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकता है. कोई भी ऐरा गैरा नहीं, BAMS BHMS आजकल वो भी बहुत पकड़े जा रहे हैं कि इलीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. Now pregnancy termination of pregnancy can be done only by RMP. इसका भी डेफिनेशन दिया है इस एक्ट में. RMP किसको बोलेंगे उसका भी डेफिनेशन दिया है, उसको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब कुछ दिया है उसमें. ये सारा डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, लेकिन इतना याद रखो कि इट इज डन बाय RMP which is MBS MD gynecology and obstetrics. Now it is done इन थ्री कंडीशन. प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं तीन कंडीशन के ऊपर. फर्स्ट कंडीशन, सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी डन बाय ऑन द थ्री कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन इज लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी नॉट एक्सीडिंग 12 वीक्स. अगर प्रेगनेंसी है, जो प्रेग्नेंट है उसका 12 वीक्स से ज़्यादा नहीं हुआ है, सो लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट एक्सीड 12 वीक्स, देन इट कैन बी टर्मिनेटेड. एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ उतना ही है, if there is a risk to the mother or her mental and physical health is affected or child to be born with a serious abnormality or handicap. Physicians physical and mental abnormalities मतलब क्या कि लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी अगर 12 वीक्स है, so length of pregnancy does not exceed 12 weeks. Now this pregnancy can be terminated, but how and when? If doctors अगर डॉक्टर्स इन ओपिनियन, if physician is in a opinion that keeping this pregnancy has a risk to the mother's health or her mental or physical health, it can be affected by this pregnancy. Or the doctor is in opinion of that child to be born, जो भी बच्चा होने वाला है वो सीरियस एबनॉर्मेलिटी है, उसको मतलब मेंटल फिजिकल एबनॉर्मेलिटी या हैंडीकैप पैदा होने वाला है, तो उसको टर्मिनेट कर सकते हैं. Okay, so first you have to remember this: length of pregnancy should not exceed 12 weeks. It can be terminated, but who? By only registered medical practitioners. Then second condition: length of pregnancy exceeds 12 weeks. 12 वीक से 12 हफ्ते से ज़्यादा है प्रेगनेंसी, बट 20 से कम है. So length of pregnancy exceeds 12 weeks, but not 20 weeks. Again, it can be terminated, but here you need two opinions of two gynecologists. So needs a opinion of two registered medical practitioners that the pregnancy is due to the rape or failure of contraceptive weird by either woman or his partner for family planning, or pregnancy involve the risk to the mother. मतलब अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से ज़्यादा हो चुकी है लेकिन 20 वीक से कम है और आपको टर्मिनेट करना है, अबॉर्ट करना है, तभी भी कर सकते हो आप. लेकिन उसके लिए क्या है, कम से कम दो डॉक्टर का ओपिनियन होना चाहिए कि दो डॉक्टर ने बोलना चाहिए कि नहीं यार ये प्रेगनेंसी रखेंगे तो जो मदर है उसके लिए क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर जो बच्चा है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर उनको ये मालूम है कि दिस प्रेगनेंसी इज ड्यू टू द रेप. ठीक है, तब वो उसको टर्मिनेट कर सकते हैं. होता है ना, जैसे आप जाते हो रास्ते से देख लेते हो कि रास्ते पे भिखारी वो या फिर कोई लुनेटिक वुमेन. लुनेटिक वुमेन मतलब क्या? लुनेटिक वुमेन मतलब जो पागल है, पागल औरत जैसे घूमते रहते रोड पे, अगर वो है उसका किसी ने रेप कर दिया और उसको प्रेगनेंसी हो गया, प्रेगनेंसी रह गए, तो दैट शुड बी टर्मिनेटेड. सो प्रेगनेंसी इज ड्यू टू द रेप और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पेड आइदर बाय वुमन और हर हस्बैंड. मतलब किसी कपल ने
कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया है और वो फेल हो गया है और उसकी वजह से कोई प्रेगनेंसी रह गई है, तो उसको भी टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है। नाउ थर्ड कंडीशन इज RMP can terminate the pregnancy of one who have attained 18 years of age with her consent or with with guardian's consent in writing if the woman is less than 80 years of age। मतलब प्रेगनेंसी कब टर्मिनेट की जा सकती है? अगर जो मदर है वो 18 साल की होनी चाहिए, या फिर 18 साल की है तो उसका रिटर्न कंसेंट भी लेना चाहिए डॉक्टर ने, तभी उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। या फिर अगर वो 18 साल से कम है तो उसका पेरेंट्स का रिटर्न कंसेंट लेना चाहिए, गार्डियंस रिटर्न कंसेंट। ठीक है। सो इट इज दिस हाउ अ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी डन। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये देख लो कितना है। डज नॉट एक्सीड 12 वीक्स, 12 वीक्स से कम है और उसमें कौन सा कंडीशन है ये, और 12 वीक्स से ज़्यादा है लेकिन 20 वीक्स से कम है तो कंडीशन कौन से ये। ठीक है, ये सब इसमें। और एक कंडीशन है, अगर लूनेटिक उम्र हो गए, लूनेटिक मतलब पागल, अगर रास्ते पे चलते हुए जब पागल बैठते तो उनका, अगर उनका प्रेगनेंसी हो गया बाय बिकॉज ऑफ द रेप एंड अदर केस, तो उनका भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जा सकता है। प्लेस फॉर टर्मिनेटिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, डिसाइड हो गया कि टर्मिनेट करना है, लेकिन कहाँ पे? द प्लेस फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो द हॉस्पिटल एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट और एनी अदर प्लेस अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर हिज दिस पर्पस। मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि कहीं भी जाके आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हो, कहीं भी जाके आप अबॉर्शन कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ, या फिर एनी अदर प्लेस है। दूसरा कौन सा प्लेस? जहाँ पे अप्रूव है, द प्लेस अप्रूव्ड फॉर गवर्नमेंट, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। मतलब दूसरा कोई हॉस्पिटल है वो अप्रूव किया गया है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट में, कि यहाँ पे आप कर सकते हो, वो इसी जगह पे आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हो या अबॉर्शन कर सकते हो। सो इट शुड बी अवेलेबल विद, मतलब वो प्लेस क्या क्या होना चाहिए वहाँ? इट शुड बी अवेलेबल विद ऑपरेशन टेबल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर परफॉर्मिंग द abdominal and gynecological surgery, and anesthesia, resuscitation equipment and sterilized equipment with IV fluids and drugs of emergency use। ऐसा नहीं कि आप कहाँ पे भी जाकर कर सकते हो, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या फिर गवर्नमेंट ने जिसको अप्रूव किया है वो हॉस्पिटल को, वहीं पे ही प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन कर सकते हैं, वहीं पे अबॉर्शन कर सकते हो। और उसके लिए वहाँ पे इतना सारा सामान होना जरूरी है, ऑपरेशन टेबल, ड्रग्स, एनेस्थीसिया, आईवी फ्लूइड्स वगैरह। इंस्पेक्शन ऑफ प्लेस, कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल। अगर कोई किसी हॉस्पिटल को अप्रूव किया है टू टर्मिनेट द मेडिकल प्रेगनेंसी, तो वहाँ पे अप्रूव किया मतलब ऐसे ऐसे ही नहीं करते, वहाँ पे इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन करने के बाद वहाँ पे रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड सब यूटिलिटीज है कि नहीं, वो सब चेक करते हैं। उसके बाद में ही उसको लाइसेंस या सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे कोई भी कभी भी इंस्पेक्शन का हो सकता है, और लोन का सर्टिफिकेट कभी भी कैंसिल हो सकता है या सस्पेंड हो सकता है। सो चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे कौन है? चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, उसके हाथ में सब। सेंड द रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट विद द डिटेल्स ऑफ डिफिशियंसी एंड डिफेक्ट फाउंड इन द प्लेस। तो ये चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है वो इंस्पेक्ट करेगा कहाँ पे? जो प्लेसेस है, जो अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स है वहाँ पे जाके कौन करेगा इंस्पेक्ट? ये चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वो जाके वहाँ पे इंस्पेक्शन करेगा एंड विल सेंड द रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट विद द डिटेल्ड डिफिशियंसी एंड डिफेक्ट फाउंड इन द प्लेस। अगर कोई डिफिशियंसी प्लेस में डिफेक्ट है तो वो वहाँ पे इंस्पेक्ट करके रिपोर्ट बना के भेजेगा गवर्नमेंट को। द गवर्नमेंट कैन ऑर्डर टू कैंसिल द सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल और सस्पेंड द सेम। मतलब अगर आपके हॉस्पिटल में आप रिक्वायर्ड फैसिलिटीज नहीं है, ऐसा उनको नज़र में आया, तो आपका जो भी मेडिकल टर्मिनेशन का सर्टिफिकेट था, जो भी लाइसेंस दिया था आपको, वो टर्मिनेट हो सकता है या फिर आपका सस्पेंड हो सकता है। इफ इंस्पेक्शन ऑफिसर डज नॉट satisfied due to safety and hygienic condition of the place, may call may call or any information may call for any information or may seize any articles, medicines, ampoules, administration registers and other document maintained by or kept at the place। मतलब अगर वो उसको लगा कि यहाँ पे कुछ घपला है तो वो पूरे डॉक्यूमेंट भी ले सकता है आपसे, सीज कर सकता है,
या फिर कोई ड्रग का कंटेनर है, एम्पूल्स वायल्स, वो भी ले सकता है आपका। उसके बाद मतलब उसको पावर से वो ही कैन सीज एनीथिंग। ठीक है। नाउ मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, ये जीपैट 2000 क्वेश्चन आया था, जीपैट 2020 सॉरी 2019 में क्वेश्चन आया था ये। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर किसका रजिस्टर? जो पेशेंट का अबॉर्शन हो चुका है, जो पेशेंट का प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया है, उन सबका रिकॉर्ड रहता है। ठीक है। सो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ रजिस्टर हुज मेडिकल प्रेगनेंसी हैज बीन टर्मिनेटेड। So maintenance of register. So admission register should be maintained by head of the hospital or owner of the approved place। और सेम टू सेम लाइन क्वेश्चन था 2019 में। ठीक है। सो एडमिशन रजिस्टर शुड बी मेंटेन्ड बाय आइदर हेड ऑफ द हॉस्पिटल और ओनर ऑफ द प्लेस, ओनर ऑफ द अप्रूव्ड प्लेस। और ये दोनों भी ऑप्शंस थे क्वेश्चन में, और उन्होंने ये करेक्ट दिया था, ओनर ऑफ द अप्रूव्ड प्लेस, ये ऑप्शन करेक्ट दिया था। बहुत से लोगों ने उसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन रेज किया था, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ किया नहीं उसका। ठीक है। सो एडमिशन रजिस्टर फॉर टू बी मेंटेन्ड बाय आइदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल, हेड ऑफ द हॉस्पिटल और ओनर ऑफ द अप्रूव्ड प्लेस इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर एडमिशन ऑफ वुमन फॉर टर्मिनेशन ऑफ देयर प्रेगनेंसी। जो भी जो भी पेशेंट्स हैं, लेडीज लोग आते हैं टर्मिनेशन करने के लिए, ठीक है, तो उनका रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। और वो रजिस्टर किसके अथॉरिटी में या फिर किसके कस्टडी में रहेगा? हेड ऑफ द हॉस्पिटल और ओनर ऑफ द प्लेस। ठीक है। इनके कस्टडी में रहता है। आपको थोड़ा बहुत ऐसा वर्ड्स वगैरह यूज करके आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि किसकी कस्टडी में रहता है। आपको आपने बोला मैंने तो कस्टडी कभी सुना ही नहीं, लेकिन क्या है कि आप मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, एडमिशन रजिस्टर शुड बी मेंटेन्ड बाय मतलब क्या? किसने करना चाहिए? इसने करना है। कौन है वो? हेड ऑफ द हॉस्पिटल, आइदर हेड ऑफ द हॉस्पिटल और ओनर ऑफ द अप्रूव्ड प्लेस। ये दोनों ने करना चाहिए। और करने करके फेंक देंगे कि वो नहीं, वो उनके ही पास रहेगा ना। तो दे विल द कस्टडी ऑफ दैट रजिस्टर विल बी इन द हेड ऑफ द हॉस्पिटल और ओनर ऑफ द अप्रूव्ड प्लेस। इतना याद हो। देन this is the last slide, I think. Okay, we'll take this last slide and we'll it. So it types of intellectual properties and term of protection। जो intellectual property होता है, जैसे आप जैसे आपने कोई इन्वेंशन किया है, तो वो इन्वेंशन अगर किसी ने दूसरे ने देख लिया और उसने ये ले लिया, तो आपको तो सब दीवाला निकल जाएगा। आपने इतने पैसे खर्च किए होते हैं उसके लिए। जैसे मैंने बुक लिखा है, ठीक है, तो मैंने बुक लिखा है, अगर उसकी सॉफ्ट कॉपी किसी के हाथ लग गई, तो वो तो फ्री में उधर इधर इधर उधर कर देगा सब टेलीग्राम चैनल पे, इसके ऊपर उसके ऊपर। ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ उस टाइम पे? मैं पहले तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अभी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसकी तहत में बहुत कुछ कर सकता हूँ। ठीक है। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज कौन से हैं? पेटेंट लॉ है, कॉपीराइट लॉ है, ट्रेडमार्क लॉ है। ठीक है। प्रोटेक्शन फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स है, प्रोटेक्शन फॉर अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन है, protection for layout design for integrated circuit, protection for industrial design, protection for patent and मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट लॉज है। फर्स्ट लॉ है पेटेंट लॉ। ठीक है। मतलब आपने कोई इन्वेंशन किया है, नोवेलिटी है उसमें, यूनिकनेस है उसमें, इट इज नॉट अ इमिटेशन ऑफ एनीबॉडी, सो दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर द पेटेंट। पेटेंटिंग ऑफिस जो होता है वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। पेटेंट मिल गया आपको, तो आपके नाम पे वो पेटेंट हो जाएगा। सो पेटेंट लॉ इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशन। अगर आपने कुछ नया इन्वेंशन किया है, उसको पेटेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा आपको। सो पेटेंट इज फॉर इन्वेंशन एंड इट इज ग्रांटेड फॉर 20 years। मतलब आपने अगर पेटेंट ले लिया तो 20 साल वो आप ही का रहेगा उसके। हाँ, मतलब अपने अगर पेटेंट बना के कोई ये बनाया है, जैसे कोई चीज बनाई आपने, जैसे सॉक्सलेट एपरेटस में आपने अगर टेम्परेचर प्रोब डाल दिया, है ना, क्योंकि सॉक्सलेट एपरेटस में क्या होता है कि आपको नीचे कितना हीटिंग हो रहा है उसका टेम्परेचर मालूम है, लेकिन जो अंदर का सॉल्वेंट है उसका टेम्परेचर मालूम नहीं आपको। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो हर्बल होते हैं वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सोलिडिटी दिखाते हैं। तो अंदर का टेम्परेचर मालूम है, अगर किसी ने दिमाग लगाया, वो सॉक्सलेट के अंदर आपने टेम्परेचर प्रोब डाल दिया कि अंदर का भी टेम्परेचर पता चले, और वो आपका होगा इन्वेंशन।
और आपने वो इन्वेंशन किया, लेकिन आपने पेटेंट अप्लाई नहीं किया, और आपके टीचर ने या फिर आपके कलीग ने देख लिया, तो वैसे की वैसे वो सेम बना सकता है ना, सेम बना सकता है, वो आपसे चुराने की जरूरत ही नहीं उसको। आजकल टेक्नोलॉजी है तो वो सेम बनाएगा और उसका बिजनेस चालू कर देगा। तो आपका क्या, आपने किस लिए किया था, तो आपका गया। ऐसा नहीं है, आपने अगर पेटेंट लिया, पेटेंट लॉ में अप्लाई किया, पेटेंट लिया, आपको ग्रांट होगा इन्वेंशन, तो 20 साल तक आपका कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर किया तो आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही बुक्स का भी होता है कॉपीराइट लॉ, ठीक है। तो ये होगा इन्वेंशन। सो इन इंडिया द पेटेंट इज प्रोटेक्टेड फॉर 20 years, याद रखो। Then copyright law. So literary, musical, artistic, sound recording works, then books वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो होता है वो कॉपीराइट के अंदर आता है। सो कॉपीराइट लॉ विल प्रोटेक्ट द लिटरेरी वर्क, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक, साउंड रिकॉर्डिंग वर्क्स, फिल्म्स, then your books, then your, okay. So the protection is for lifetime, lifetime for authors plus 60 years, लाइफ टाइम फॉर ऑथर्स, ठीक है। 60 years सिनेमाटोग्राफी फिल्म। ऐसा नहीं कि कल आपका सूर्यवंशम रिलीज हो गया तो बहुत सारे बहादुर होते हैं, उन्होंने क्या किया कि थिएटर में जाके मोबाइल से शूट किया वो पिक्चर पूरा और डाल दिया कहाँ पे, वेबसाइट पे। तो उनका क्या, अगर रोहित शेट्टी को पता चल जाएगा उसका नाम, तो रोहित शेट्टी उसके ऊपर कॉपीराइट लॉ डाल देगा, वो तो गया पूरा सब। मतलब सिनेमेटोग्राफी फिल्म के लिए भी एक कॉपीराइट लॉ होता है, 60 years फ्रॉम द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ऑथर का लिए लाइफ टाइम प्लस 60 years रहता है। और सिनेमेटोग्राफी का भी, मतलब जो भी सिनेमेटोग्राफी है म्यूजिकल, किसी ने अगर कोई धुन बनाई उसने वो कॉपी की, तो ऐसा नहीं चलता, वो होता है आजकल, लेकिन लॉ है, लॉ लॉ जो है वो तोड़ने के लिए बनते हैं, तोड़ते हैं लॉ। लेकिन अगर किसी ने एक्शन ले लिया ना, तो लंबा जाता है फिर। वैसे ही सर्कुलेशन ऑफ बुक्स, जो पीडीएफ कॉपीज होती है बुक्स की, वो लीगल नहीं है, ठीक है, आप सर्कुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन करते हैं बुक्स सर्कुलेट बच्चे, उनको कभी कभी वार्निंग आ जाती है ऑथर से। देन नेक्स्ट वन इज ट्रेडमार्क लॉ। अगर मैंने मेरा फंडामेंटल फार्मेसिकल लोगो उसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किया, तो वो लोगो आप कोई भी यूज नहीं कर सकते। सो वर्ड्स, लेटर्स, न्यूमेरिकल डिवाइसेस, कलर्ड मार्क्स, कलर मार्क मतलब लोगोस, 3 dimensional साइंस, ये भी लोगो हो गए, साउंड्स में, देन हॉल मार्क्स, touch marks, etc. So 10 years, 10 years protection is granted for the trademark law, can be renewed by 7 years. In production of geographical indicators, goods or services belonging to specific origin, collective marks, certification marks, जैसे होता है ना गोवा का काजू, उसके लिए क्या होता है, प्रोटेक्शन फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेटर। तो गोवा का काजू, काजू जो गोवा का काजू है उसके नाम पे ही वो बिकता है ना। तो मतलब कोई अगर यूपी में काजू का प्रोडक्शन करेगा और उसको बोलेगा नहीं ये भी गोवा का काजू है, तो वैसा नहीं चलेगा ना। नहीं तो लोग क्या, वो लोग सोचेंगे ये भी गोवा का है, ये ले लेती, तो उसको प्रॉफिट जाएगा ना। तो ये नहीं होना चाहिए, वो जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स के लिए होता है। तो इंडिपेंडेंट पीरियड पे उसका प्रोडक्शन मिलता है, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप आपने अप्लाई नहीं किया पेटेंट लॉ को, कॉपीराइट लॉ को अप्लाई नहीं किया, तो आप उनको कैसे पता चलेगा ये आपका है कि उसका है। वो कॉपीराइट लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेआउट डिजाइन एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो लेआउट डिजाइन सर्किट 10 year के लिए होता है उसका प्रोटेक्शन। इंडस्ट्रियल डिजाइन का भी, जैसे फीचर ऑफ शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न ऑफ ऑर्नामेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन है ना। इंडस्ट्रियल डिजाइन, आपने कोई डिजाइन का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, तो वो डिजाइन आपने उसका प्रोडक्शन ले लिया ना, तो वो कॉपी नहीं कर सकता कोई। सो मिनिमम पीरियड ऑफ 15 years। देन प्रोडक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज, मतलब आपके पास मान लीजिए कि आपने एक अलग तरह का प्लांट बनाया हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, या फिर आपने प्लांट टिश्यू कल्चर से क्या किया, एक ऐसा गुलाब का झाड़, गुलाब का पेड़ बना दिया, गुलाब का पौधा बना दिया कि जिसमें व्हाइट गुलाब भी आते हैं, रेड गुलाब भी आते हैं, पिंक भी आते हैं, ब्लैक कलर के भी आते हैं,
मतलब एक ही पौधे में आपका 4-5 टाइप का गुलाब का फूल आता है। ठीक है, आपने कुछ मॉडिफाई करके प्रोजेनी डेवलप किया तो उसके लिए भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वराइटीज, उसके लिए रजिस्टर करो प्लांट वराइटीज, एक्सटेंट वराइटीज, सीड्स। सो मिनिमम 18 ईयर ऑफ ट्रीज एंड वाइन्स, एक्सटेंट वराइटीज 15 ईयर्स, अदर क्रॉप 6 ईयर, मतलब उसके लिए भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और लास्ट स्लाइड, पेटेंटिंग ऑफिस इन इंडिया 2019 में जीपेट क्वेश्चन जीपेट में आया था, 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था। सो पेटेंटिंग ऑफिसेस इन इंडिया, सो देयर आर पेटेंटिंग ऑफिसेस लाइक कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। ये 4 जगह पे पेटेंटिंग ऑफिस है, यहाँ पे आप पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंडिया में कितने हैं? 4 है, कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। अभी कोलकाता के ऑफिस में कौन अप्लाई कर सकता है पेटेंट के लिए? रेस्ट ऑफ द इंडिया। रेस्ट ऑफ द इंडिया मतलब ये जो ये बाकी के 3 जो ऑफिस है, इस इसके 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 बाहर का कोई है तो ये कोलकाता के लिए अप्लाई कर सकता है। न्यू दिल्ली के पेटेंट ऑफिस में कौन अप्लाई कर सकता है? सो स्टेट ऑफ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। सो एनीबडी इज फ्रॉम दीज स्टेट्स दे कैन अप्लाई फॉर अ पेटेंट in the New Delhi office. So if in case of Mumbai, if anybody is from Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Goa, Chhattisgarh, Daman, Diu Daman, Dadra Nagar Haveli, so these state member of these state can apply for a patent in the Mumbai office. चेन्नई में कौन कर सकता है पेटेंट ऑफिस में अप्लाई? स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यूनियन टेरिटरी लाइक लक्षद्वीप। इनमें से इन स्टेट में के कोई बंदा है वो पेटेंट के लिए कहाँ अप्लाई करेगा? चेन्नई में। महाराष्ट्र का, गुजरात का, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, यहाँ से बंदा कहाँ पे अप्लाई करेगा? पेटेंट ऑफिस एट द मुंबई। ठीक है, इन स्टेट से जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, यहाँ से न्यू दिल्ली के ऑफिस को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इन स्टेट में से नहीं हो तो आपको कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा? कोलकाता में अप्लाई करना पड़ेगा। सो दीज आर द इंडियन पेटेंटिंग पेटेंटिंग ऑफिसेस इन द इंडिया। अभी जीपेट 2019 में क्वेश्चन आया था, एक स्टेट का नाम दिया था, याद नहीं अभी। यस यस, आई थिंक मध्य प्रदेश दिया, मध्य प्रदेश। सो इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर अ पेटेंट फ्रॉम मध्य प्रदेश, सो विच पेटेंटिंग ऑफिस यू कैन अप्लाई? तो उसका आंसर था मुंबई। ऐसा तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द टुडे सेशन एंड देयर विल बी वन मोर सेशन ऑन दिस जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, पास कब हुए, इसके बारे में एक चार्ट बनाने वाला हूँ, वो भी आपको प्रेजेंट करके बोलूँगा। ठीक है, सो दिस विल एंड योर टुडे सेशन। आर यू गेटिंग और नॉट?